लेजेंड हीरो ऑफ आर इंडियन इंडस्ट्री। सबसे पहले आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि है ट्रेन की। तो ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, cooker is very high due to temperature difference. When there is more temperature, there is more heat and there is more pressure. But when there is low heat, there is no temperature and there is low pressure. That's why we cook food. आए शून्य से अलग तक, हम शून्य से अलग तक, शून्य से अलग तक। हेलो बच्चों। Hello friends, welcome to this amazing platform of Notesala Foundation. Today in this video, we are going to revise the chapter KTG and Thermodynamics in part 1 and second part 2. So let's get started without wasting any time. So first of all, what is heat? Heat is something which is a form of energy. It can flow from high temperature to a low temperature, and it is the heat which that flows due to temperature difference. Next we'll talk about molar heat capacity of a gas. So 1 mole of gas when is heated by 1 K or 1 Kelvin due to rise in temperature, so that we call as molar specific heat of a gas. It is the amount of heat required to raise the temperature of gas by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Let's talk about the relation between heat and temperature rise of a gas. So the formula for heat and temperature rise of a gas is Q equals to Nc delta T and dQ equals to Nc dt. This dt here is representing a small rise in temperature and N is mole and dQ is heat given in a small amount. Let's talk about what is the state of a gas and what is the process. So you have also know about this formula that PV equal to nRT. That is, when there is a transition between the two states, that is the first state and second state, the difference, the phenomena which occur here is known as a process. Now let's take an example of cooker and a patila. So when we heat something or cook something in a patila or a cooker, let's take as rice, and second in patila, let's take example of rice and cooker and in patila. So when we cook in both, the pressure which is exerted in the cooker or a patila is very different. The pressure in the cooker is very high due to temperature difference. There is When there is more temperature, there is more heat and there is more pressure. But when there is low heat, there is no temperature and there is low pressure. That's why we used to suggest to cook food in cooker in place of patila. तो ये रीज़न था क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा किसमें, कुकर में, और कुकर में तब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा। इसी वजह से उसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होगा कम, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पतीला का वो होगा ज़्यादा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रेन की, और फिर बात करेंगे एक मच्छर की, फिर बात करेंगे शक्तिमान के, लेजेंड हीरो ऑफ आर इंडियन इंडस्ट्री। सबसे पहले आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि है ट्रेन की। तो ट्रेन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है, बस एक तरह का फ्रीडम होता है, मतलब कि एक तरह का वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन होता है बॉडी का अलग अलग एक्स वाई जेड एक्सेस में। तो जैसे कि कोई ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ रही है तो वो सर्कुलर पाथ पे तो जाती नहीं है, वो जैसे ही अगर स्ट्रेट पाथ में जाएगी तो उसका जो ट्रांजिशन होगा वो एक ट्रांसलेशनल मोशन में होगा। और जैसा कि हमें पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन की जो फॉर्मेट होता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 1। वैसे अगर मच्छर देखें तो मच्छर तो कहीं तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। वैसे ही जैसे शक्तिमान है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो राउंड राउंड मारता है, तब वो अराउंड मूव अराउंड करता है। जैसे ही वो राउंड्स मारने लगता है तो वो ऊपर भी जाता है, एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है और जेड में भी जाता है। तो इस वजह से उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 4। वैसे अगर बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल,
तो वो होगी उसकी होगी 5, क्योंकि ये रोटेट भी कर सकता है एक्स और वाई में। और वहीं अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल, तो वो रोटेट तो करेगा लेकिन उसका रोटेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो उसका रोटेशन है वो एक ही एक्सेस पे हो रहा है, अपनी ही जगह पे रोटेशन हो रहा है। यहाँ रोटेशन नहीं, यहाँ रेवोल्यूशन हो रहा है, जैसे अर्थ के केस में होता है। यहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है पर उसके साथ रेवोल्यूशन भी हो रहा है, लेकिन उसके केस में जैसे कि सिंगल एक मोनोटोमिक मॉलिक्यूल के केस में मोशन तो होता है, रोटेशनल होता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक्सेस पे होता है, इन इट्स ओन एक्सेस। दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज अ रोटेशन, नॉट अ रेवोल्यूशन। बढ़ते अगले केस की तरफ कि मोल के मास, सेंटर ऑफ मास, इससे भी थोड़ा रिलेटेड है। तो एम ओ आई ऑफ एन एक्स एक्सेस इज दैट कंसिडर एज 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 2। सो काइनेटिक एनर्जी जो उसकी निकल के आएगी वो आ जाती है 0। इस वजह से हम मोनोटॉमिक की काइनेटिक एनर्जी 0 कंसिडर करते हैं। तो 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल हो गए, तो इस वजह से आ गई 5। अब बढ़ते अगले पेज की तरफ। अब आ जाते हैं जैसे नॉन प्लेनर में। तो नॉन प्लेनर में क्या होता है कि वो जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसमें भी रोटेट करेगा, इस वजह से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 6। अब एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसको ले लिया गया। उसमें पाया गया कि अगर वो जब वो नॉन प्लेनर होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। और अगर वही पार्टिकल, वही एटम एक स्ट्रेट लाइन में लगा दिया जाए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 5। जैसा कि जो शक्तिमान है, नहीं, जो उस केस में लिया गया था डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में, उसमें भी ट्राइटोमिक में भी वही केस होता है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो फिर इन द ब्लैंक्स में एक्सरसाइज के रूप में दी गई है। सबसे पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटोमिक गैस, आप इसे याद भी कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं स्कूल में, बोर्ड्स में, वो जिससे आपकी हेल्प हो गई उसमें। सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल, सॉरी, सबसे पहले मोनोटोमिक गैस, तो उसमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल वो होगी 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राइटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल वो होगी 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राइटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगी 6। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन विल बी कंसीडर्ड व्हेन। अब इसके आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। पढ़ते अगले पेज की तरफ। अब आते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पार्टीशन और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हैविंग इक्वल एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय kT/2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल का, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो सब में इक्वल पार्ट में दे दी जाती है। जैसे लड्डू है तो वो लड्डू अगर बटेगा तो सबको इक्वल दिया जाएगा। जैसे आपके घर में भाई बहन है तो उनमें लड़ाई ना, उस वजह से लड्डू को 3 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे एक भाई का नाम है रोटेशनल, एक भाई का नाम है ट्रांसलेशनल और एक भाई का नाम है वाइब्रेशनल। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इक्वल पार्ट में, वहीं यहाँ सब जाएंगे हैं। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस की। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस कैसे निकाला जाए, तो उसकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है, क्योंकि डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन बोर्ड्स के हिसाब से आपको फॉर्मूला के साथ डेरिवेशन भी याद करना पड़ेगा। वो मैं आपको फॉर्मूला शीट में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स एन क्या होगा, तो टोटल इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी NF/RT/2, जिससे याद कर सकते हैं नफरत/2 से। तो वैसे अगर स्मॉल पार्ट पे देखें तो DU इक्वल्स टू NF/RDT/2। और जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट वॉल्यूम में, सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर में होना चाहिए, यानी कि वो होना चाहिए केल्विन में। अब इसे किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, और इसे यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए अगले पेज में।
बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ गैस इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम यही होगा कि जब सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें टाइम के साथ, तो उसी को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। जिससे टाइम के साथ क्या कांस्टेंट रहे? डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट रहे, तब जो वो स्टेट आती है, जो स्टेट अटेन करता है एक मॉलिक्यूल या एक एटम या एक बॉडी, उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ये एक स्टैंडर्ड नहीं लॉ है, ये एक बेसिक लॉ है जो कहता है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है ए, बी और सी तीन बॉडीज़ के बीच, तो ए और बी के जो ट्रांजिशन है इसके बीच में जो अटेन हुआ है वो इक्वल होगा ए और सी के बीच। मतलब ए और बी के बीच अगर कोई भी ट्रांजिशन हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम का, तो वो ए और सी के बीच भी उसी के इक्वल होगा। मतलब अगर ए और बी इक्वल हैं सी के, तो ए और सी के भी इक्वल होगा बी, और बी और सी इक्वल होगा ए, या फिर कहें कि ए इक्वल होगा सी के। अब आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट गिवन इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब इससे ये कहा जाएगा कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से, मतलब कि जो लॉ दिया गया है ये बेस है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे लिखा हुआ है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क, हीट गिवन एंड राइज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले देखें, बात करें तो टी ए मतलब कि जो हीट गिवन है, जहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, ये हीट गिवन है, ये है राइज इन एनर्जी, और ये है स्मॉल वर्क डन। अब राइज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, एन एफ आर टी बाई टू, और यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, पी वी होता है डेल्टा पी वी, तो ये आ जाएगा पी डेल्टा वी के इक्वल। अब आते हैं अगले पेज की तरफ। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन द गैस। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क ये छूट गया था पोर्शन, इस वजह से इसे पढ़ा देना ज़रूरी है, इस वजह से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स द सेम वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है, और ये सबके लिए वैलिड है, सारी कंडीशंस के लिए ये वैलिड रहेगा। और व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, तो ये है, इट इज़ द सम ऑफ पॉसिबल एनर्जीज, इट इज़ द सम ऑफ पॉसिबल एनर्जीज within a gas. We will consider gas as a system. For an ideal gas we will consider only the kinetic energy, मतलब आइडियल गैस के लिए सिर्फ kinetic energy कंसिडर होगी, पोटेंशियल या ट्रांजिशन एनर्जी कोई भी एनर्जी कंसिडर नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, अब पढ़ेंगे इसका थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू फॉर एनी प्रोसेस एन सी डी टी, मतलब जो क्यू है वो बताया था एन सी डी टी, और जो यू है वो बताया गया था एन एफ आर टी बाई टू, और जो वर्क डन है वो बताया गया था पी डी वी। तो इस वजह से इस प्रोसेस पर ये सब हमें यूज़ करना होगा। अगर कोई भी चीज़ पूछ ली जाए तो उसको रख देंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। अब आते हैं साइन कन्वेक्शन इज फिजिक्स। If a gas is expanding then the work done is positive. If heat is given to the gas then it will be positive. If the heat is given out from the gas then it will be negative. If the gas is compressed then work done by the gas will be negative. तो ये था fill in the blanks जो कि ज़रूरी है याद करने के लिए, आप इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ।
अब आ जाते हैं वर्क डन बाय ए गैस में जितने भी प्रोसेस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं एक करके कि उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा। इसमें डेरिवेशन नहीं दी गई है, सिर्फ सिंपली उसे बताया गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट होगी। सबसे पहले है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में जब होता है, जब जो हमारा प्रेशर होता है, बैरिक से याद कर सकते हैं, आइसोबैरिक में बार से याद कर सकते हैं। बार मतलब होता है प्रेशर, एक यूनिट होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वजह से आइसोबैरिक जो होता है वो प्रेशर रिलेटेड होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हो जाएगा पी डेल्टा वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे पी डी वी को तो आएगा पी डेल्टा वी, जिसका फॉर्मूला पी डी वी होगा, सॉरी पी डेल्टा वी होगा। डेल्टा का मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम, तो टोटल जो उसका निकल के आएगा वो होगा पी डेल्टा वी। अब आ जाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, जो हीट होगी, जो क्यू होगा, वो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। अब आ जाते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। और एडियाबैटिक में क्या होगा, क्योंकि जो डी क्यू होगा, जो डी होगा, डी थीटा, जो वर्क वो होगा ज़ीरो, इस वजह से जो वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव, नेगेटिव यू आ जाएगा। तो इस वजह से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस एन एफ आर टी बाई टू। फॉर एन जनरल प्रोसेस के लिए क्या लगाएंगे, क्यू माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन फ्रॉम ग्राफ देख लेते हैं। जैसे एरो का बहुत इसमें कन्वेक्शन होता है, अगर वो गलत हो जाता है तो पूरा आंसर भी गलत हो सकता है, इस वजह से इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया कैसे निकालें। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन निकालने के लिए सबसे अच्छा काम है उसका एरिया निकाल लो, वर्क डन आ जाएगा। अगर एरो देखो, इस डायरेक्शन में एरो है, इस डायरेक्शन में एरो है, जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर एरो इस डायरेक्शन में है तो जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। बस एरिया जितना है इसको कर लो कंप्लीट, आंसर आ जाएगा। इनसे कुछ सेंस होता है, कन्वेंशन का कुछ सेंस होता है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्लॉकवाइज है, तो जब क्लॉकवाइज होगा तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और अगर जैसे वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये सिर्फ वैलिड है साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए। अब एरिया अंडर द कर्व जो होगा वही साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन हो जाएगा, जो नीचे वाला इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो बस इतना ही बताना था। लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू।